Unmute yourself, Mohan bhai. You can start now, Mohan bhai, whenever you're ready. Oh, you want me to start? Just to the दिया जला दी क्या? Yeah. दिया का फिर से कर देंगे, दिखा दे तो दीवा तो मैंने जला दिया। अब दोबारा बताता हूँ सबको कि just आज का to go on the video, you know. Thank you. Yeah, okay. आज का दीपक है, आज का दिन जो है वो देवी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए, देवी माँ जो प्यार की मूर्ति है, प्यार की, तो इसके लिए मैं दीपक जला रहा हूँ। आप सबके लिए प्रणाम कर लीजिए सब, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओम Om everybody. Thank you, Mohan bhai. That was excellent. Good way to start with the diya. Ghee ka diya jalane se your atmosphere gets purified and gives you more benefit of pranayam. Today, this week the subject is cancer. It's a growth of body cell. Yesterday we talked about all the different organs, how long it takes to regenerate yourself. If somebody asks me how old I am, I will say I'm not more than 20 years old. So you'll be laughing at me. He's saying it looks like an old guy and he's saying he's 20 years old. Because all my body parts are not more than 20 years old. The truth about cancer is our body is made up of tiny cells. Cells are becoming old, they die, new cells are produced to replace them. It's a natural phenomenon in the body. Cancer cells are natural cells which exist in everyone. Its controlled process of self-multiplication result in developing of lump is called tumor. And that could become cancerous as well. And the white blood cell, your immunity, B and T cell, job is to remove those dead cells from the body to create a balance. And it's already been proven. The scientists won a Nobel Prize. Cancer cell cannot thrive in oxygenated environment. If you're not anemic, no lack of B12, and you do pranayam daily, automatically you are more oxygenated blood. The chance of that happening is nil. All normal cells have a requirement for oxygen. That's why a cancer cell can live without oxygen. So if you deprive a cell of 35% of its oxygen for 48 hours, it becomes cancerous. For oxygenated blood, we need to breathe deeply and not being anemic, no lack of B12 and so on. So how to detect cancer in different parts of the body? Another pointer for detection is the organ where cancer is developing or is distributed. There is a pain in corresponding point in your palm of your hand and sole of the feet as well. Like if you have cancer or blood cancer, then if you look at your left hand, below the heart line, let me highlight myself first, just so you can see it better then. If you look at the left hand, where the heart line is, just below the heart line is spleen. So if you have electric gun, if you don't have, it doesn't matter. If you set that there, and you put this, there's a meridian there. If you put it there, if it's paining, that means your spleen is struggling to produce white blood cell and red blood cell. It's not able to do the job, and that is self-improving it. Just by doing that. Or you can do with hand as well. If you press it like that, below the heart line, if it's paining, that tells me you're anemic as well. Go and get a check blood test done. And eat the right food, do the right thing. Very important. Savanji, heart line means this is the line. Is that the That's the line just there. Yeah.
Yeah. Okay, so Just below that one. just below that is spleen. Thank you. Okay. And then if you have a lung cancer, then if you take the middle finger and the ring finger, where the two wedge meets there, if you press it there again, you can do it with hand as well. Just press the hand like that. If it's paining, that means you're asthmatic or your lung is struggling. You have infection in your lung or something. If it's paining a lot, that's when the pranayama will fix it. If cancer could be detected at very early stage, then it could prolong your life by preventing it can prevent by acupressure, and mudra can fix it. There's a cure for all type of cancer. But to cure the cancer of certain organ, you have to cure the whole body. You have to treat your liver, gallbladder, your spleen, your kidney, and all endocrine system. All the endocrine glands are to be activated, because one organ affects all the other. It's like a domino effect in all the different organs as well. And it brings the metabolism of the body in order. One of the first things you should do is, if you find any problem, you check your solar plexus. If you join the two heart line like this, then in the finger, the top line of the little finger should be matching. If it's not matching, that means your solar plexus has moved. That might cause constipation, bowel movement, or diarrhea, and might create palpitation. Solar plexus is very important. That's what a lot of people might remember. Your daddy used to pull your toes or tie a black string onto your toes as well to stop the navi from navi getting barber. So it's very important, because you're connected with the mother, you're in the solar plexus. Everything is very important. Then ban salt and spices from your diet. Drink fresh juice, sprouted pulse, eating things like avocado and so on, beetroot, carrot, cabbage, broccoli. Eat plenty of salad, turmeric, cinnamon powder, fenugreek, and so on. Practice pranayama daily and take sunbath. But obviously, we are North Hemisphere, we're lacking that. So we have to take a vitamin D3 tablet, which will be able to make your bone stronger as well and increase your immunity as well. One of the major cancer in the world is what? What's the main cancer in the world? Breast cancer, isn't it? That's the top of the list. 90% of all breast cancer begins in the duct where the milk is produced. With females who don't breastfeed, chance of that happening becomes higher as well. And people who take birth control pills could increase the risk of cervical and breast cancer. It's very important body to have all natural material in your body. A lot of people wear bra with the wire around the frame, and due to the disturbance of effective metal, your nadis, energy channels are blocked, and that creates itself a problem. It is essential that only pure cotton or silk should be worn close to your body. No artificial fiber should be in contact with your chest, as these tend to disrupt the normal flow of energy. Underarm antiperspirant, they contain metals, aluminum, and things like that. And ladies who work night shift tend to more chance of having cancer, high rate of cancer. People who take certain drug, aspirin all the time regularly, they get cancer as well. And you have to cultivate a spiritual life. Connect with your body and the mind through the breath. That connects to your soul. And this all tends to lead to your spirituality. Very important. This can be done with your brief or meditation, which we do today with Mohan Bhai. Appreciating nature around you, taking up some hobby, listening to music, reading. Make room in a day for yourself, learn to love yourself as something you love. Do those things. Very important. So let's look at how do you diagnose
breast cancer. Simple one. If you take your back palm of your hand and middle palm of your hand, you press that, left hand and the right hand. First, I'm trying to find out which side of the body is more chance of our lymphatic system is struggling. By pressing both hands, you find which hand is more painful. If my left hand is more painful, fair enough. Next, I go to 3 finger above my palm and press that as well. Left hand and the right hand. If my left hand is paining as well, that tells me my left hand side of the body, lymphatic system is very weak. So if I have any lump forming, more chance of forming on the left side of the body. And same thing will happen your feet. If you press middle palm of your feet as well, that will pain as well, more than the right hand, right feet. If you have problem on the left side. I said to you, I've been to the cancer hospital. There was 40 patients with cancer. And the doctor present as well. By pressing the hand, I could tell what cancer they had. I could tell them was the right breast or left breast, was it prostate cancer, was it colon bowel cancer. Just by pressing those points where I pressed, the person jumped. That's what told me. And that's why I'm using the knowledge I've gained from my practical experience to let you know how to diagnose yourself. So it's very important. I said to you, any one organ struggle, you have to exercise other organs as well. And one of the main organs, you have to exercise the liver. Press always your liver point on right hand. Right hand, that's the heart line is the liver point. And below that is the gallbladder. And on the feet, you know already, between the toes and the next, you press that point where the center point is as well. I'll show you the one. Lung meridian goes from here to here. If I put the lung meridian here, all my hand will shake. That's how the energy channel works. I need to find the spot first. Just the thumb, see, all my hands are shaking, see. Just by putting one gun here. I'm energizing, I'm opening up all the energy channel on my lung meridian. I'm not shaking my hand, it's happening automatically. That's how effective this gun is. If you problem with the spleen, you put on the spleen, that is so will activate the energy to the spleen as well. So hopefully, just to give you some kind of, so really, if you have a problem with left hand, then always put a elastic band or something around your hand, or a mala around your hand always, or wear bangles on the hand, and keep doing this regularly. That itself will help you to promote good health. Okay, before we go on to forward, you want to ask any question on this part, just to clear anything if you don't understand, because it's quite important subject. This is just to find out where the pain is, where the health issues are. Acupressure is a very important tool to diagnose your illness. Also helps to prevent it, and also help to manage it as well. That's all 3 in 1. I've done acupressure to a baby as well. With the vomiting, things like that, when they drink milk, they vomit. Just by acupressure doing point, they stop vomiting. Any questions so far? Anybody? Are you okay with what I've explained so far? You said aspirin might be cancer, but some heart patient or they have to take regular aspirin. Obviously, I'm not a medical person, but that's the information that was given to me. If somebody takes it regularly for a long period, but some people don't have a heart problem, but they're still taking aspirin all the time just for prevention aspect of it. But you have to do it naturally. Try to thin your blood down, make work rather than taking aspirin. But I do take aspirin when I'm traveling. A week before when I'm going to flight, long flight, I take aspirin to make sure I don't get thrombosis. I'm not saying, I'm just telling you information I've been given by medical team and things like that. I'm just passing on to you, but I don't have all the answer. Sorry. Savanji, when you do the acupressure on the baby, do you still do on the wrist for the vomiting? No, usually palm of the feet. Palm of the on feet. The feet. Okay. The feet is much more sensitive to when the hand is not grown up properly. The feet are more likely to develop much better. They're much stronger for baby as well. They can kick their feet and things like that. So usually on the feet, you kind of rub gentle point to intestine
and the stomach and so on. But it's the hands you can do as well, but gently, because babies are very sensitive, so you can't press too hard. Just nice and just be oil on it, some kind of baby oil, and just massage it gently on the point to activate the certain organ and promote good health. Okay, thank you. Any more question, or we go forward now? So one thing is, acupressure is not a hocus pocus. But when I'm doing it with you, when I'm with you, you have to feel it as well. When I'm doing, I'm not just saying do this, I'm feeling your energy channel as well when I'm doing it. I'm using my energy to heal you, like a Reiki. It's not just I'm pressing it, I'm actually trying to give you energy from when I'm touching myself, doing it, I'm energizing you through my energy to heal you as well. So it's like acupressure, it's like a Reiki, it's working two-way. So when you do it to yourself, it's not, if somebody else does it to you, it's more beneficial. That makes sense? Okay, so I think we'll stop there. We had good enough discussion on that point. Let's now go on to the pranayama class. So sit in the Gyan Mudra, roll your shoulder back, eyes closed, take a deep breath and chant Om for 3 times. Gently take your both hands over there, rub them together. Cover your face. Open your eyes between the closed palm of your hand. Feel the heat. Massage over your forehead, your cheeks, around the ear, the back of the neck, your shoulders, arms, and your body. Excellent. Your body in ready to take the maximum benefit of pranayama because in the active state. Now sitting in the Gyan Mudra, upside down in Chin Mudra, we do Bhastrika for 30 seconds. Excellent. Still keeping the Chin Mudra, we will do Kapalbhati for 1 minute. Excellent. Now we do the Adi Mudra. Oh, come in the middle. Take first. Bhastrika.
Excellent. Still keeping the Adi Mudra, we do Kapal Bharati for 1 minute. Excellent. Next, we will do some light exercise just to expand the lung, not much, just few. Your hand there. And breathe in, and breathe out. Excellent. Now both hands here. And relax. Make a tight fist. You go up, open the palm of your hand. 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Now we go into the first pranayama of Bhastika, sitting in Gyan Mudra, which helps you to focus, concentrate, and that Khichdi Mudra makes the breath deeper, the more chance of expansion, and you're meditating on your third eye, or this point, just below the nose, one of the governor vessel point, or follow your breath for next 3 minutes. Yeah. Anxiety is one of the main cause of cancer as well. Most people, when I meet, when they have cancer, they usually go through some kind of something happens in their life to give them anxiety. Stress. Stress is one of the biggest cause of ill health.
And relax. Take your both hands up in there, rub them together. And one of the important one also is the uterus. A lot of female have uterus fibrosis and the male have the prostate problem. If you look at any of the hand, where the hand meets, when you lift your hand, thumbs up, there's a hollow point there. If you press that point, if it's paining, that tells me if it's female, your uterus has some kind of fibrosis. I can't tell the size. Doctor, when they do the scan, they can find it what size it is. If it's paining for male, that tells me your prostate is going from 20 grams to 30, 40, 50. When it goes to 80, then you have no choice but to do the surgery. Same with uterus. If the lump becomes too big, then the doctor will perform surgery to remove your uterus as well. And that could also become cancerous as well. So really pressing these points, both hands, depending which hand is more painful, both need to press it. And if you have pain, that means you have uterus fibrosis for Can you female show and me you have prostate problem Yeah. for male. Just thought I meant to say that to you as well, I forgot. So I thought just remind you, that's quite an important one. Because most female tend to, when I went to America, what a lot of female doctors do, after the last childbirth, if they're through cesarean, they remove the uterus right away. They know the problem, medical people. They know chance of uterus fibrosis is very high. So whenever they have the last child with cesarean, they get the uterus removed as well. But that's not the point. Point, if you do exercise properly, then it should heal itself automatically. Okay. Now I said to you, cancer is very important for stress and anxiety. So one of the best one is to breathe in and breathe out through the mouth. Next, put your forefinger near your thymus gland, press hard. This also increases your immunity and also helps to reduce your anxiety. Press hard and do Kapalbhati for 30 seconds. Excellent, well done. Next one, you breathe in 3 deep breaths, and fourth time you breathe in and cough loudly for 3 to 4 times. This time you breathe in and cough loudly. Excellent. Very good to activate and get rid of any mucus deposited in your in the lung, and also any plaque deposited in your artery, prevention of heart attack and stroke. One more. Excellent. And last but not the least is the obviously nitric oxide. Just put your palm of your hand on the eardrum and put your tongue against the teeth and make the vibration down your nasal passage. Do humming sounds for 5 times.
Gently take your both hands up in the air. What I'll do now is I'll pass on to Mohan Bhai and Kausalya ji to take over from here and take the class to whichever way they feel fit. And I'll do the backstage. Thank you very much, Mohan Bhai and Kausalya ji. Thank you, Ji. Thank you. Om Sravanji, thank you very much. It was very wonderful information in short time. You covered the subjects, which is nowadays the worlds are, suffering from them. So we do, okay. Today we're going to do the meditation bit longer. That's what everybody wanted. So पहले करेंगे कि आज ऐसे करेंगे, पहले हम बैठ के बातें करेंगे वो देवी की जो करुणा की देवी है, उसका जो उपकार हमारे पे है, अनगिने उपकार है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसलिए पहले बैठ के हम बात करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए आराम से मेरे भाई बहन, और बैठने से पहले आज अवश्य आप कुछ शरीर पे डालने के लिए है, क्योंकि लंबा टाइम होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर विल गो डाउन लिटिल बिट। सो आराम से सोना है, जब मैं बोलूँ तो उसी टाइम पे सोना है। सो 2 पार्ट में हम मेडिटेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले पार्ट में हम थोड़ा सा चांटिंग करेंगे, हम काम डाउन करेंगे। आप उस चांटिंग के में आप अपनी माता का, अपने देवी माँ का, अपनी माँ का चेहरे को लाइए और उसके अर्पण करना है। सभी कुछ जो आज का पूरा है वो माँ को अर्पण करना है। जैसे दीपक जलाया वो भी हमने माँ को अर्पण किया, वैसे आज जो मेडिटेशन हम करेंगे जो भी है वो देवी, उस शक्ति, वो जो करुणा की देवी है उसको हम करेंगे। तो पहले क्या करना है, सीधे बैठ जाए मेरे भाई बहन, आंखें बंद कीजिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए सीधे, एंड चैंटिंग द ओमकार मंत्र जब तक मैं बोलूं तब तक। The last time. आंखें बंद रखिए मेरे भाई बहन, कंसंट्रेशन कीजिए, कंटिन्यूअस ब्रीदिंग, हल्का सा श्वास लेते रहिए और जो मैं बातें करता हूँ वो सुनते जाइए और मनोमन चांटिंग करता जाइए। सामने माँ की तस्वीर को खड़ा कर दिए, माँ की पवित्र मूर्ति को खड़ा कर दिए जो आपके सामने। और मेरे में से बहुत से मेरी माँ बहन माँ बन चुकी है, उनको पता है वो भी देवी है, साक्षात देवी है,
इसलिए मैं नारी शक्ति और माँ को साक्षात सदैव प्रणाम करता हूँ। माँ कैसा शब्द है। म के साथ एक कानों, एक लकड़ी लगाने से माँ बन जाता है। माँ बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उसमें शास्त्रों भी देखे तो कम पड़ जाएगा। माँ के महिमा को समझने, सुनने, माँ के बातें करने बड़ा देखे। हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा कोई इतना नॉलेज नहीं है। मेरे भाई बहन, हम तो आपके साथ बैठ के एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं उसमें से हमको कोई एक रास्ता मिल जाए, वो आध्यात्मिक के ओर ले जाने के लिए। श्रवण जी वगैरह जो टीचर्स वगैरह है, बाबा रामदेव है, सब ने हमको एक टूल दिया हुआ है योगाभ्यास का। इससे अभी हम तंदुरुस्त बन रहे हैं, हम बैठ सकते हैं, हम योगा अभ्यास कर सकते हैं, मेरे शरीर में कुछ चेंज आ रहा है। तो अभी के आगे का स्टेप जो है, हमको भक्ति के मार्ग पे जाना है, आध्यात्मिक के मार्ग पे जाना है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे भाई बहन, कि मेरे दिमाग में जो भी कुछ भरा हुआ है उसको खाली करना है। जितना हम हल्के बन जाएंगे, शरीर से तो है ही, लेकिन मन से, तन से हल्का बनेंगे, फिर ही हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है मेरे भाई बहन। कोशिश करेंगे, आज वो ही हम कोशिश करेंगे कि उसमें क्या है। तो उसमें एक है जो माँ एक देवी शक्ति है, जो एक देवी है पवित्र, कि जिसका उपकार हम पे इतना है कि कहीं जन्म भी हम लगा दे तो उपकार को हम वो नहीं कर सकते। करुणा की मूर्ति है। जब भी देखो माँ को आप देखे, महसूस कीजिए मेरे भाई बहन, अपने बचपन में चले जाइए। माँ के क्या है, माँ क्या एक ही है जिसको सारी दुनिया में, ब्रह्मांड से कहां से भी देखो तो देवी को ही एक दान दिया हुआ है। माँ वो ही एक छोटा सा नाना सा मासूम बच्चा, टुडिया प्यारी सो इस ब्रह्मांड से एक पृथ्वी पे लाती, वरना कोई नहीं कर सकता। एक देवी शक्ति माँ की। देखिए क्या है। इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू संस्कार में, हिंदू धर्म में हम सारी नारी जाति को माँ मानते हैं। देखिए, शुरू कर लीजिए, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, सभी देवी देवता को माँ मानते हैं। क्यों? ये स्थान पर पहुंचना इतना आसान नहीं है मेरे भाई बहन, और वो एक नारी शक्ति ही कर सकती है। एक छोटी सी बच्ची, गुड़िया, हार्डली क्या कहे बोलते 6-7 अंश का जो मासूम बच्चा, इसको ये ब्रह्मा की बनी हुई धरती पे एक माँ ही ला सकती है। और हम बड़े भाग्यशाली है कि माँ के हाथ से हम यहाँ पृथ्वी पे आए। और हमको एक स्पेशल काम करना है, वो भक्ति सेवा। उससे पहले हमको हल्का बनना है मेरे भाई बहन। माँ की बात देखिए, माँ के होदे पे पहुंचने के लिए एक स्त्री को, एक बच्ची को सारी जिंदगी के इतने पड़ाव पे जाना पड़ता है। कहीं अच्छे भी है, कहीं दुखी भी है। बच्ची जन्मी है, छोटी सी मासूम बच्ची है, उसके साथ क्या क्या रिश्ता आता है। पहले जो रिश्ता है माँ का है। माँ ने कैसे किया ये चीज, सुनिए समझिए मेरे भाई। उसके पहले वो बच्ची आती है तो कुटुंब में आती है, किसी की बहन बन जाती है, किसी की ननद बन जाती है, किसी की बच्ची, और खिलखिलाट करके वो ही घर में बड़ा आनंद सुख लाती है। फिर वो बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और फिर क्या होता है, उसका चेंज आ रहा है। उसके जीवन का जो महत्वपूर्ण चेंज क्या होता है कि शादी होती है। वो छोटी सी गुड़िया बड़ी हुई है, उसकी अभी शादी हो रही है। शादी क्या है मेरे भाई बहन, एक राजकुमार आता है, हवन के सामने 5-7 चक्कर लगा के वो गुड़िया को ले जाता है।
और समझे एक ही दिन में, एक ही रात में कितना चेंज होता है उनकी लाइफ। जो उसका पुराना रिश्ता है उस छोड़ के वो नई जगह पे जाती है। माँ देवी, माँ शक्ति एक ऐसी है कि मोमबत्ती जैसी है कि जहां भी जाए वहां उस ढाल में वो डल जाती है। नई जिंदगी है, सारे विश्वास के साथ एक ही राजकुमार के विश्वास पे वहां चली जाती है। सुनिए, समझिए मेरे भाई, वहां उसको नया सब कुछ मिलता है, नया पहचान मिलती है, नए रिश्ते मिलते हैं। जैसे कि घर से निकली तो उसको सासू माँ और बीची माँ मिलती है, उसके लिए वो बहू बनती है। ननंद नंदोई किसी की भाभी बनती है, किसी की फूफी बनती है, और आखिर में वो पत्नी बनती है, जो राजकुमार के साथ पत्नी। और वो सारा घर का एक सब कर लेती है, सबको एक रिश्ते में बांध के रखती है। वो है स्त्री, वो है नारी शक्ति, उसको प्रणाम। सुनिए वो माँ का, जो आप मेरे माता ये मेरी बहनें इसमें से पास होंगी है। और खुशी खुशी अगर देखिए हमेरे जैसे हैं क्या, अगर बिस्तर में हमेरा पीलो अगर बदल जाए तो सुबह में कहते हैं कि भाई हमको नींद नहीं आई क्योंकि हमेरा सिराना बदल गया। सुनिए यार, क्या बात है। और ये नारी सब कुछ हंसते हंसते सहन करते हुए अपनी मंजिल के ऊपर जा रही है। टेक ए डीप ब्रीथ, लंबा श्वास लीजिए मेरे भाई, विजुअलाइज कीजिए वो माता को, नमस्कार कीजिए। वो है तो हम है, हमेरा वजूद है। उसकी जो भावनाएं, उसका जो प्यार है कभी भी कम नहीं होता है। वो एक धारा बह रहा है, जैसे गंगा का नीर बह रहा है, उसमें कभी चढ़ा उतार नहीं आता है। प्यार कभी भी देखो माँ का, छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी हुई, फिर तो संपूर्ण नारी तब बनती है। मेरे भाई बहन सुन लीजिए, ये मेरा मानना है कि जब वो मातृत्व पैदा करती है, पाती है, माँ बनती है, और वो भी एक अच्छा दिन आता है जब वो माँ बनने जा रही, वो गर्भवती बनी, एक छोटे से जान को अपने शरीर में शरीर का हिस्सा बना के उसको पाल रही है। ये कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई बहन। हर पल हर दिन उसका उसी टाइम से 7 महीने 8 महीने तक चेंज होता रहता है। सारी शरीर की प्रक्रिया चेंज होती है, फिर भी उसका जो मुस्कुराना, उसका एक हैप्पीनेस है कि वो उनके शरीर में, उसके पेट में एक छोटा सा नन्हा सा मासूम प्यारा बालक आ रहा है। और इसकी कृपा के बिना एक कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। इसलिए माता को प्रणाम करना चाहिए, उसको सदैव प्रणाम करना चाहिए। और देखिए वहां से शुरू होता है जर्नी। अभी हम कहीं पार्टी में चले गए, कहीं लग्न में चले गए, अच्छा खाना है, थोड़ा ज्यादा खा लिया, और आखिर में एक रोटी हमने खा ली, सिर्फ एक रोटी। अगले 5-7 घंटे हम हैरान हो जाएंगे, हम इधर भागेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोलते कि हमारा पेट अभी फूटने वाला है, हमारा पेट अभी प्रेशर हो रहा है। वही जगह जो पेट है, एक माता, एक देवी एक मासूम बच्चे के लिए कैसी जगह बना लेती है। सोचने की बात है मेरे भाई बहन। उस जगह बनाती है, वो भी कैसा कि एक पानी का परपोटा बनाती है, इसके अंदर ये बालक को संभाल के रखती है ताकि उसको कोई भी तकलीफ नहीं पड़े। माँ धन्य है, माँ धन्य है, माँ हम सब धन्य हो। और उसका सारा व्यवहार वो मासूम बच्चे को नाभि से लेके उनके शरीर को माँ के शरीर से चलता रहता है। और संस्कार की बात करें
तो वो देवी माँ उसी टाइम से उसको संस्कार दे रही, अच्छी भावना, अच्छा संस्कार, ये सब उसको मिल रहा है। 7 महीने तक, मेरा मानना 9 महीने तक उसको हर रोज वो बड़ा होता रहता है। तो सुनिए यार, समझिए कि ये पेट जो है वो कहाँ, वो कितनी वो तकलीफ से है। उसका खाना ठीक नहीं होता है, वो बैठ भी नहीं सकती है, वो सो भी नहीं सकती है, बड़ी तकलीफ से भी, फिर भी उसको एक विश्वास है नारी शक्ति को, तो मैं एक मासूम बच्चे को इस धरती पे ला रहा हूं। वही विश्वास, इस सारे दर्द वो सह लेती, हंसते हंसते सह लेती। वो है मेरी माँ, अपनी माँ। इतिहास गवाह है, अगर ब्रह्मा की बनी हुई धरती पे भगवान को भी आना है, इस इतिहास गवाह है, सुनिए मेरे भाई बहन, उसको भी माँ के उधर से ही आना होता है। एक दरवाजे के बिना वो इस धरती पे नहीं आता। पशु को भी देख लीजिए, पंछी को भी देख लीजिए, सबको देख लीजिए, उसकी प्रक्रिया यही होती है। श्री रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान और बड़े बड़े महान, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, बड़े बड़े नेता है, जैसे हमारा नरेंद्र भाई, इस सब को माँ के गर्भ से ही आना पड़ता है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता मेरे भाई बहन। इस सनातन सत्य को समझ लीजिए, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, डीप लंबा सांस लीजिए, विजुअलाइज कीजिए वो प्यारी माँ को। अगर जिंदगी में ऐसे सब प्रसंग होंगे, सोचिए, अपनी वीडियो को बैक रन कीजिए, पीछे ले जाइए और देखिए पूरी जर्नी माँ की। अगर कभी उसका हर दफा उसका हाथ उठता है, वो आशीर्वाद के लिए उठता है माँ का। वो बच्चे के लिए कभी भी भेदभाव नहीं करती। ये हम समझ रहे थे, हमारी ये अनपढ़ता है, हमारी ये नादानी है कि हम उनके ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं कि माँ ने ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। माँ कभी नहीं करती मेरे भाई बहन। उसके आशीर्वाद जितना भी मिले इतना लेना चाहिए। हमारे जिस बहुत कम भाग भी है कि हमारे साथ अपनी माँ नहीं है। वैसे आप और जिसकी भी माँ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, समझ लीजिए बात को। उसका आशीर्वाद यही एक बड़ी बात है, और इस जमाने में इसके बिना कुछ नहीं बनता मेरे भाई बहन। माँ की याद कीजिए। और आप मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप बनी है, आपको पता है आपका जो बच्चे के लिए जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। उसके पीछे कोई ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया तो मेरा बच्चा मेरे लिए करेंगे। ये हमारे भाग्य का हिसाब, लेकिन कभी भी बुरा मत सोचिए उसका। और माँ करती ही नहीं, हमेशा ये सोचती है उनके बच्चों के लिए कि फले फूले बड़े हुए, समाज में इज्जत कमाए, अच्छा कार्य करे, सेवा करे, वो ही चाहिए। क्या बात है। विजुअलाइज कीजिए मेरी माँ को, अपनी माँ को विजुअलाइज कीजिए। ऐसा टाइम था। और माँ क्या होती है, दूसरा, जो अगर धनवान माँ है उसका भी इतना ही प्यार है, और एक गरीब माँ है उसका भी उसके बेटे के लिए, उसके बच्चे के लिए वही प्यार है, उसमें कोई फर्क नहीं। बच्चा बड़ा हुआ, फैमिली को संभाल रहा है, काम से थका हुआ आता है, तो क्या होता है, जो बाप है वो उसके मुंह पे देखता है कि आज क्या कमा के लाया है। बच्चे नादान है, वो खिलौना के लिए डिमांड करते कि पापा, दीदी, पापा आप कुछ लाए मेरे लिए। पत्नी वो दूर से देख रही है और सोच रही है कि इस महीने कुछ ऐसी चीज लाए कि मैं मेरा घरीना दागीना खरीद सकूं। सब डिमांड करते हैं, क्यों? वो घर का मुख्य है।
सोचिए, एक माँ ऐसी है, वो उसको देख के खुश होती है। और एक वो माँ जो है, चाहे धनवान है चाहे गरीब है, वो उसको बोलेगा बेटा तू थका हुआ है, चल आजा, मैं तेरे को खाना दे दूं। जो भी है, धनवान के पूरी थाली भरी हुई है, और जो गरीब के पास सूखी हुई आधी रोटी है, उसमें से वो आधी उसको खिलाती है खुश होके। ये माँ है मेरी बाइबल। ये माँ का स्वभाव है, ये माँ की दृष्टि है। इसीलिए दुनिया में सब देवी देवता, हमारे संस्कार में देवी को माँ कहा जाता है। बड़ा ऊंचा ज्ञान है मेरे भाई बहन, उसमें मैं नहीं जा सकता हूँ। एक माँ के बारे में और क्या बताए, आप सबको पता है। अभी मैं एक बात ऐसी करने जा रहा हूं मेरे भाई बहन, मेरी माताएं सुनिए, ये मेरा अपना अनुभव है, जो आज भी मैं उससे पास हो रहा हूं। मेरी माँ के लिए, मेरी माँ मेरे साथ बहुत साल यहाँ रही और आशीर्वाद बहुत मिला है। आज जो भी हूं मैं, हम पैसे टके से हूँ, धनवान भी हूँ, अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तंदुरुस्ती वापस मिल गई मेरे को, और हम आपके साथ बैठ के एक वार्तालाप कर रहे हैं। मेरे को सुशील पत्नी मिली हुई है, संस्कारी सुशील पत्नी मिली हुई है, अर्धांगिनी जो मेरे बाजू में बैठी, उसके बिना मेरा वजूद कोई नहीं है। मेरे भाई बहन, नारी शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। वो माँ है, आज भी मेरे बच्चे को वो छोटे बच्चे की तरह ही देखती। ये माँ का प्यार। और आप सब माताएं ऐसी है, मेरी बात नहीं है, तो मेरा कहने मतलब भाव है कि हम साथ रहते थे। एक मेरा नित्य क्रम था कि जब भी मैं मेरी काम से आता हूँ और काम करके आता हूँ, स्नान करके रेडी होके मैं मेरी माँ का हर रोज चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरी माँ भी कैसी है कि वो, उसको पता है कि मेरा बेटा अभी आया, वो स्नान करने गया हुआ, तो वो आराम से सोफे में बैठी हुई है, माला लेके बैठती है और वो इंतजार करती है कि मेरा बेटा कब आए और मैं उसको आशीर्वाद दूं। हर रोज मेरे को आशीर्वाद मिलता है। फिर एक ऐसा वक्त आया, संजोग आया, सुनिए मेरे भाई बहन, उसमें धंधा और बिजनेस से कुछ ऐसा हुआ कि मैं मेरी माँ को एक ही मकान में रहते हुए 3 दिन तक मैं उसका दर्शन नहीं करने पाया। 3 दिन तक एक ही मकान में रहते हुए। उसी टाइम तो मेरे को पता ही था कि मैं इतना बिजी था, वो है। लेकिन आज और सालों से मैं ये एक गिल्ट मेरे में है और उसके उठा के मैं थक गया हूँ मेरे भाई पे। मैं हर दफा सोचता हूँ, मैं बहुत से कुछ कर लिया, बहुत सी चैरिटी करता रहता हूँ कि चलो इससे होगा, इससे आराम मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी, इससे मेरा गिल्ट कम होगा। पहली चैरिटी मैंने की थी लिटिल क्रमिया में, स्वामी जी जब फर्स्ट टाइम आए थे। ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये भी एक भावना से की थी कि चलो कर लेते हैं, चलो सेवा करना है तो ऐसे करते हैं। और वो हमने माँ की भावना से, माँ के आशीर्वाद से अच्छी तरह से उसको निभाया। स्वामी जी लिटिल कमरिया आए थे, पहले वो किचन में आए, रसोई घर में आए और हम दोनों को मिले और कौशल्या को बोलते हैं कि आप अन्नपूर्णा है माते देवी। और बताया स्वामी जी ने क्या बोला, बोला कि माते मैं भूखा हूं, मुझको कुछ दीजिए। ये स्वामी जी, और वो अंत खाते नहीं है। तो फिर मेरी वाइफ ने उसको एक कैरेट दिया, गाजर दिया, वो वहां ही खड़े खड़े आधी कैरेट स्वामी जी ने खा लिया। और उसका वो है, वो बोलते हैं कि माँ मैं तंदुरुस्त हो गया, मैं संतुष्ट हुआ आज। और ये माँ
कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने ज्ञानी भी माँ की इतनी सराहना करते हैं। वो सब माँ के, क्योंकि वो सब माँ के उदर से आए, पेट से आए। बहुत काम किया, बहुत कर लिया, बहुत भोग हो गया। फिर जब मैं घर पे आए, हर दफा ही मेरे साथ आज तक हो रहा है। घर के मैं आता हूँ घर पे, फिर मेरा वही गिल्ट आती है कि अच्छा है आपने कर लिया, लेकिन क्या वो 3 दिन इतना जरूरी था कि आप आपकी माँ को नहीं मिल सके? इसका मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे भाई बहन, हमारे पास सब कुछ है। खुशी हो आपकी सबकी दुआ से, आपकी प्रार्थना से अभी मैं तंदुरुस्त बन गया वापस, और आपके सामने बैठा हूँ। हमारे बच्चे फुले फाले हैं, अच्छे धंधा कर रहे हैं। हम दोनों आनंद से, भक्ति भाव से प्रार्थना करते, एक योगा करते, योगा करवाते हैं। बट एक गिल्ट अभी तक निकली नहीं है मेरे भाई बहन मेरे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको नमन करके कि मुझे कोई शक्ति दीजिए कि इस गिल्ट से निकलूं, और मेरी माँ को 2 हाथ जोड़ के आज प्रार्थना करके, माँ ये मेरी गलती थी, कैसे हुआ उसका नहीं, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ये मेरे भाई बहन की माँ होती है। आज भी मैं तरस रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आज से एक गिल्ट से मैं बाहर निकलूं, और भी करूं। ये है माँ मेरे भाई बहन, ये माँ कितने दर्द सह करके हमको इस पृथ्वी पे लाई। और हम ऐसी गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, जवानी के जोश में, पुख्त वय के होके भी ऐसी गलती कर देते हैं। क्षमा मांगते हैं, माँ क्षमा देंगे, देवी क्षमा दे देंगे। और आज मेरे को विश्वास है कि आपके सामने जो मेरे आप सब भाई बहन हैं, जैसे समझ बना रहा है कि एक कुटुंब बन रहा है, और वहां मैं आज 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसे ही मेरे भाई बहन, अभी आप सीधे लेट जाइए, और अभी लेट लेट के एक थोड़ा सा कौशल्या जी 2 लीटी गायन भजन सुनाएंगे, उसके बाद बाकी का मेडिटेशन करते, शांत हो जाए मेरे भाई। मुझे माफ कर देना कि मेरे को ये बात आपको बतानी पड़ी, लेकिन ये मेरे को बहुत ही दुख दे रही थी। जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, एथी मधुर ते में एथी मीठी ते मोरी मातरे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, प्रभुना ए प्रेम तणी पूतड़ी रे लोल, प्रभुना ए प्रेम तणी पूतड़ी रे लोल, जगती जुदेरियनी चातरे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, अमिनी बरेलियनी आखड़ी रे लोल, अमिनी बरेलियनी आखड़ी रे लोल, भावना भरेला एना वेण रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, मीठा मधुर ने मीठा मेहुला रे लोल, एथी मीठी ते मोरी मातरे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, मीठा मधुर ने मीठा मेहुला रे लोल। लंबा श्वास लीजिए मेरे भाई बहन, और आप सीधे लेटे हुए होंगे, शवासन के पोजीशन में सो जाइए मेरे भाई बहन। आज हम शवासन में यही करेंगे, माँ के लिए प्रार्थना करेंगे।
लेट इट फ्लो द पॉजिटिव एनर्जी। हमारे शरीर में टोटल रिलैक्स हो रहे हैं हम। एक पगला और ऊपर जा रहे हैं आध्यात्मिक की ओर। और इससे पहले हम सब मेरे भाई चाहिए अपने सोचिए अपने बचपन से एक एक प्रश्न को याद कीजिए मेरे भाई। और जहां भी आपको लगे कि आपकी गलती हुई है, नादानी में हुई है, जानबूझ के की हुई है, बचपन में हुई है, ढूंढिए उसको मेरे भाई, माफी मांगिए। माँ की दो हाथ, हो सके तो दो आंसू रुला ली चपका दीजिए। एक आहुति होगी माँ के लिए। आप बड़े हम नसीबवान हैं कि आज साथ बैठ के वो कार्य कर रहे हैं जो सालों से करना था, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। मेरी भावना सिर्फ इतनी है कि मैं जो रास्ता मेरे को मिला हुआ वही रास्ता आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। क्षमा, माफी। कंटिन्यूअस ब्रीदिंग, लंबा श्वास लीजिए मेरे। ये प्रेरणा की मूर्ति, ये प्यार की मूर्ति, ये प्यार की देवी को नमन करते हुए अपने आप में खो जाइए। हो सके इतनी माफी मांगिए मेरे भाई। जो माँ चली गई इस सृष्टि से वापस नहीं आने वाली है, लेकिन उसकी भावना, उसका आशीर्वाद वो हमारे साथ। आज जो भी कुछ हम है, जहां भी है, माँ हमेशा चाहती थी कि आप खुश रहे और हम सब खुश हैं। दुख हमने क्रिएट किया हुआ है, ये एक क्षणिक है, उसको निकाल दीजिए कम से कम ये आधा घंटे के लिए। भूल जाइए सब यादी व्याधि, सोचना, माँ को कंसंट्रेशन। ओम श्री माते नमः। 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 ओम श्री माते ओम श्री माते नमः। ओम श्री माते नमः। विजुअलाइज कीजिए मेरे भाई बहन, हंसती हुई माता को, मुस्कुराती हुई माता को अपने सामने लाइए। प्यार भरी आंखों को देखिए। माफी मांगिए मेरे भाई बहन। ओम श्री माते नमः। 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 ओम श्री माते
नमः। ओम श्रीमते 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 नमः।
ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते ओम श्रीमते ओम श्रीमते ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीमते ओम श्रीमते नमः। 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 ओम श्रीमते माफी मांगिए मेरे भाई बहन, मेरी माताएं, माते से की माफी मांगे, दयालु देवी की माफी मांगे, दोनों हाथ जोड़ पूरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है याद कीजिए, दबाव डालिए, थोड़ा सा याद कीजिए, क्षमा मांगिए, क्षमा दे देंगी, देवी है, दया की देवी है, वो आपको क्षमा दे देगी। मेरे भाई बहन, हो सके तो 2 आंसू बहा दीजिए। और जिसके माँ आयात है वो बहुत ही लकी है, उनके भी माफी मांगिए, उनके पास तो बहुत ही सुनहरा दिल है कि वो दोनों हाथ जोड़ के माँ के पांव पकड़ के माफी मांगिए।
माफी मांगी। आजकल तो ये भी है कि अगर माँ हमें से दूर है और हयात है तो आज तो बहुत ही सुविधा है, वीडियो कॉल करके माफी मांगी, कुछ भी करके माफी मांगी। कोशिश कीजिए, बड़े हल्के हो जाएंगे मेरे भाई बहन, जिंदगी का पूरा भार निकल जाएंगे और हम हल्के होके आध्यात्मिक की ओर जाएंगे। ऐसी भावना कीजिए मेरे भाई। ओम श्री माते 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 ओम श्री माते। याद कीजिए वो सुनहरा दिन मेरे भाई बहन, तो वो मीठी याद, माँ के साथ बिताई हुई मीठी याद को याद कीजिए, बहुत सुख मिलेगा। ये बहुत बड़ी अनामत है हमारे पास, यादें। चले जाए यादें, मीठी याद देखिए, तो माँ का खिलखिलाट हंसता हुआ चेहरा को देखिए, माँ अपने हाथों से खिला रही है, वो एक खुशी देखिए। समझ लीजिए कितना प्यार माँ का है कि वो खुद खिला रही है, तभी उसको संतोष होता है कि मैंने बड़े बच्चे को खिलाया, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो। छोटी सी जान पैदा होती है मेरे भाई बहन, और उसको स्तनपान से अपना जीवन अमृत पिलाती है, पहला कुटिया अमृत का वो माँ अपने शरीर से पिलाती है। सोचिए, इसका भावार्थ समझिए, उसकी भावना को समझिए, फिर देखिए आगे इतनी सुंदर माँ जो है, छोटे बच्चे को क्या हो रहा है, कब उसको भूख लग रही है, क्यों हो रहा है, उसका एहसास उसको पहले से ही होता है। माँ कहीं पढ़ने नहीं गई, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गई, लेकिन जैसे ही माँ बनती है उसको सारा ज्ञान होता है, बच्चे को कैसे संभालना, कैसे संस्कार देना, क्या करना, कैसे समाज में जाना, कैसे भावना से भक्ति करनी है, कैसे रसोई घर में रसोई बनानी, वो माँ दिल से सिखाती है। और वही संस्कार आज चल रहा है हमारे पास। आज आप मेरी माताएं बहनें, माँ तो बन चुकी, आज आप ग्रैंड पेरेंट बनिए, नानी बनिए, ग्रैंड माँ बनिए, दीजिए वो सब प्यार अपने पोते पोते, निस्वार्थ। कभी भी ये मत देखिए कि ये क्या करेगा वो करेगा, ये अपना बच्चा है, अपना बालक है, प्यार से उछेरिए, प्यार से कुछ बना के खिलाइए, अपने हाथों से प्यार भरा एक रोटी वो आप खिलाएंगे उस मासूम बच्चे को, उस पोते को, जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी मेरे भाई, मेरी माँ। याद कीजिए वो हल्की पले, और जिसके पास अभी टाइम है, जिसके माँ हयात, सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए मेरे भाई। जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं एक दिल की, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसी दिल से नहीं गुजरे। एक बड़ी दर्दनाक व्यवस्था होती है। ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः।
ओंकाराय नमः ओंकाराय नमः ओम मातुश्रीये नमः ओम मातुश्रीये नमः ओम मातुश्रीये नमः ओम माते 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 ओम माते ओम माते आज सोना नहीं है मेरे पाते पिते मेरे भाई बहन माता का स्मरण कीजिए माँ को विजुलाइज कीजिए प्यार भरी भावना की मूर्ति भावना की देवी प्यार की देवी सोना नहीं है मेरे भाई को चैंटिंग कीजिए याद कीजिए वो सारी पले जो सुनहरी पले मेरे जीवन में ओम माते 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 ओम माते
Om Te 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 Namah. Om Te Namah. Om Te Namah. Omkaray 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 Omkaray